ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں خصال مہدی۔ پیش ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کی دنیا بھر کے لیڈروں نے کی مذمت۔ امریکہ، فرانس، اٹلی، جاپان، آسٹریلیا، اردن اور اسرائیل کے سربراہان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کر کے دہشت گردی کے خلاف یکجہتی کا کیا اظہار۔ آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی آج کریں گے جموں و کشمیر کا دورہ۔ اعلیٰ فوجی حکام کے ساتھ کریں گے سیکیورٹی جائزہ میٹنگ۔ فوج کی 15 کور کے ساتھ جائیں گے بیسرن گراؤنڈ۔ دہشت گردی کے خلاف پورے ملک میں غم و غصہ۔ وشو ہندو پریشد کا آج پہلگام قتل عام کے خلاف احتجاج۔ آل انڈیا ویاپاری سنگھ نے بھی کی بند کی اپیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 2 روزہ دورے پر اٹلی کے لیے روانہ۔ ویٹیکن سٹی میں پاپ فرانسس کی آخری رسومات میں کریں گی شرکت۔ اور کیف پر مہلک روسی حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوتن سے بمباری روکنے کی اپیل، جبکہ صدر زیلنسکی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنا جنوبی افریقہ کا دورہ کیا مختصر۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد بین الاقوامی سطح پر بھارت کو وسیع حمایت مل رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی اور پہلگام حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ فون پر بات چیت کے دوران جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ اس مشکل وقت میں بھارتی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جنگ میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے نائب صدر وینس اور صدر ٹرمپ کی حمایت اور یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ امریکہ نے جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے کہا کہ جیسا کہ صدر ٹرمپ اور سیکریٹری روپیو نے واضح کیا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، امریکہ دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ Now on to the terrorist attacks in Pahalgam. As President Trump and Secretary Rubio have made clear, the United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured, and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی۔ انہوں نے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے بھارتی عوام اور متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی نے اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ سرحد پار دہشت گردانہ حملے کے بارے میں معلومات شیئر کیں۔ وزیر اعظم مودی نے دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے بھارت کے عزم کو دہرایا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور جموں و کشمیر میں جارحانہ دہشت گردانہ حملے میں بے گناہ لوگوں کی وحشیانہ ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے حملے کی شدید مذمت کی اور بھارتی عوام کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بربریت مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے پیغام کے لیے صدر میکروں کا شکریہ ادا کیا اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بھارت کے عزم سے آگاہ کیا۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے متاثرین کے لیے تعزیت اور دعاؤں کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اٹلی کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی نے ان کی فون کال اور دہشت گردی اور اس کے حامیوں کے خلاف واضح پیغام کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور اٹلی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو مضبوط بنانے کے لیے بین الاقوامی فورم سمیت مل کر کام کرتے رہیں گے۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم مودی سے فون پر بات کرتے ہوئے معصوم لوگوں کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اینتھونی البانی نے مشکل کی اس گھڑی میں بھارتی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا وعدہ کیا۔ جاپان کے وزیر اعظم شیگیرو اشیبا نے جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی۔ انہوں نے حملے میں ہلاک ہونے والوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کو انسانیت کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ جمہوریت پر یقین رکھنے والے تمام ممالک کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر لڑنا چاہیے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے بھی پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ اردن کے بادشاہ نے وزیر اعظم مودی سے فون پر بات کی۔ انہوں نے معصوم لوگوں کی ہلاکت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم مودی نے ان کی حمایت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بھارت دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے بھی پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ مصر کے صدر نے وزیر اعظم مودی سے فون پر بات کی۔ انہوں نے دہشت گردانہ حملے میں ہلاک ہونے والے افراد سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مصر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے صدر السیسی کی حمایت اور یکجہتی کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ماریشس کے وزیر اعظم نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کو بزدلانہ قرار دیا ہے۔ ماریشس کے وزیر اعظم ڈاکٹر نوین چندر رام غلام نے وزیر اعظم مودی سے فون پر بات کی۔ انہوں نے دہشت گردانہ حملے میں بے گناہ افراد کی ہلاکت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں بھارتی عوام کے ساتھ حمایت اور یکجہتی کا اظہار اور کہا کہ دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہیں۔ ادھر نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ کے پی شرما اولی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی۔ انہوں نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی نے بھی دہشت گردانہ حملے میں نیپالی شہری کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زور دیا کہ بھارت اس دہشت گردانہ حملے کے قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت اور نیپال ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے خلاف ہر طرف غم و غصے کا ماحول ہے۔ برطانیہ میں بھارت کے ہائی کمشنر وکرم دورئی سوامی نے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وکرم دورئی سوامی نے کہا کہ لوگوں کو مذہبی شناخت کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں حالات کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ In this case, people were pulled out, identified on the basis of their identity, their religious identity, and shot dead. These were civilians in the largest majority, and all were there just to have a holiday. The purpose of this exercise in bestiality was purely to create terror and to undermine the ongoing normalization of circumstances in Jammu and Kashmir. The purpose of this exercise was to prevent the people of Jammu and Kashmir from carrying out normal day-to-day businesses, to prevent them from improving their lives through business, through work, to intimidate people from coming to this beautiful part of India. برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے رکن پارلیمنٹ باب بلیک مین نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ انڈیا ہاؤس میں بھارتی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردانہ حملوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف بھارت کے ہر فیصلے کے ساتھ ہیں۔ This terrorist outrage, singling out people who were Hindu and indeed I understand Christians as well, demonstrates these people have hatred for people because of their religion. They cannot be tolerated.
I raised the issue today in the House of Commons, and I've asked for a statement next week from the government to make sure we express not only our grief and our support for India, but also for the actions that India will need to take following this terrorist outrage. जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारतीय हुकूमत मुसलसल सख्त इक़दाम कर रही है। दरियासना भारतीय फ़ौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज श्रीनगर का दौरा करेंगे। फ़ौजी सरबराह के इस दौरे को दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जानिब अहम कदम माना जा रहा है। जनरल द्विवेदी श्रीनगर और दीगर हसास इलाकों का दौरा करेंगे, जहां उन्हें दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद की सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ की जाने वाली फ़ौजी कार्रवाई के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। इस दौरे के दौरान वादी कश्मीर और LOC में तैनात सीनियर फ़ौजी कमांडर आर्मी चीफ को पूरी पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देंगे। बिलखुसूस इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस, सिक्योरिटी इंतजामात और मुकामी सतह पर की जाने वाली मॉनिटरिंग से मुताल्लिक़ मालूमात शेयर की जाएंगी। वो फ़ौज के श्रीनगर में कायम 15 कोर कमांडर के साथ सिक्योरिटी जायज़ा मीटिंग करेंगे और बैसरन के मैदानी इलाकों का भी दौरा करेंगे। आर्मी चीफ श्रीनगर में शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्रा कुमार समेत आला फ़ौजी हुकाम से भी मीटिंग करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी हुकूमत और फ़ौज की जानिब से वाज़ेह इशारे दिए गए हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध आबी मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। भारत की जल शक्ति की वजारत ने पाकिस्तान को ख़त लिख कर इससे आगाह किया। वजारत की सेक्रेटरी दीपा श्री मुखर्जी ने मकतूब में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर सरहद पार से दहशतगर्दी जारी है। हुकूमत हिंद ने फैसला किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है। ख़त में इंडस वाटर एक्ट 1960 में तरमीम का मुतालबा किया गया है। और अब खबरें खिलाड़ियों से मुताल्लिक़। अब खिलाड़ियों के लिए हर ज़रूरी दस्तावेज़ उनकी जेब में होंगे। हुकूमत हिंद की डिजी लॉकर डिजिटल सर्विस का फ़ायदा अब खेलों में भी नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, ज़ख्मी खिलाड़ियों की जामे सहूलत का मरकज़ न सिर्फ खिलाड़ियों को फिट रखेगा बल्कि उन्हें अपने मकासद पर बेहतर तवज्जो मरकूज़ करने में भी मदद देगा। नाजरीन, पेश है हमारे नुमाइंदे गौरव कुमार की ये ख़ास रिपोर्ट। मुल्क 2036 के ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए कोशां है, इसलिए तमाम चैलेंजेस के पेश नज़र उन पर काबू पाने की कोशिशें तेज़ी से की जा रही हैं। अब इस सिलसिले में मुल्क में खेलों की डिजिटलाइजेशन भी डिजी लॉकर की शक्ल में सबके सामने है। दरअसल डिजी लॉकर के ज़रिए खिलाड़ियों को खेलों के सर्टिफिकेट्स तक रसाई हासिल होगी, यानी मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद खिलाड़ियों को फेडरेशन जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उनका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के ज़रिए उनके मोबाइल में होगा। कोई एथलीट को तैयार करना है, क्योंकि 2036 में हमें ओलंपिक्स होस्ट करने की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें 360 डिग्री प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। और मोदी गवर्नमेंट की यही विशेषता है। हम केवल नारा देने वाले लोग नहीं हैं, हम केवल कागज पे लेटर निकालने वाले लोग नहीं हैं। हम डिसीजन भी लेते हैं, एफर्ट भी करते हैं, इनिशिएटिव भी लेते हैं, रोड मैप भी तैयार करते हैं और रोड मैप को एग्जीक्यूट भी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। इस दिशा में ऑलरेडी काम चल चुका है। इतना ही नहीं, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि खिलाड़ियों के लिए चोट बड़ा मसला न बने, खेल के वजीर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में वाक़े नेशनल स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च सेंटर में खेलों की बहाली के सेल का भी इफ्तिताह किया, जहां ज़ख्मी खिलाड़ियों की बहाली की जामे सहूलियात मौजूद होंगी। जब एक प्लेयर्स कहीं मतलब प्रॉब्लम होते हैं, इंजरी होते हैं, वो सब में तो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग में इफ़ेक्ट पड़ते हैं बहुत, तो उन सबको साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएगी। तो माइंड एक प्लेयर्स और एक बड़ी प्लेयर्स बनने के लिए ना माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन सबको माइंड से सेट करना है कि स्ट्रॉन्ग रखना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं।
ये दोनों चीजें खिलाड़ियों के लिए किसी एजाज से कम नहीं होंगी। इसका एक मकसद खिलाड़ियों को खेल पर तवज्जो मरकूज करने में मदद फराहम करेगा, जबकि दूसरा मकसद खिलाड़ियों को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर फिट रखने में मदद फराहम करेगा, बल्कि उससे बड़ी तस्वीर को एक नई जहत मिलेगी कि कोई खिलाड़ी आला टेक्नोलॉजी के जरिए जख्म से कितनी जल्दी सेहतयाब होता है। खिलाड़ियों का काम है अपने खेल पर फोकस करना, और ये दो जो व्यवस्थाएं अब सामने हैं, इससे उनको इस दिशा में एक और कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो मिलेगी। दरअसल अब तक ये होता आया था कि खिलाड़ी खेल में तो बेहतर प्रदर्शन करते थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनती थी, उन्हें फेडरेशंस के चक्कर काटने पड़ते थे अपने सर्टिफिकेट्स के लिए, वो एक बड़ी दिक्कत थी। कह सकते हैं कि यहाँ से वो दिक्कत भी खत्म होगी और खिलाड़ी जो है वो नए सिरे से सामने होंगे। कैमरामैन ललित के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और ख़बर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक इमारत में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन जाए वक़ूफ़ पर मौजूद हैं। इमारत में रहने वाली 2 ख़वातीन को बचा लिया गया है, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। बिहार के मधुबनी में यौम पंचायत के मौके पर वज़ीर आज़म ने बिहार के लिए हर शोबे में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए मरकज़ की तरफ से सौगात पेश की। सियाहत के मैदान में भी बहुत से इम्कानात का तज़किरा किया। इस सिलसिले में पेश है हमारे नुमाइंदे कुमार आलोक की बिहार हुकूमत के वज़ीर सियाहत राजू सिंह से ये ख़ास बातचीत। आज जो प्रधानमंत्री की जो सभा हुई और उस सभा में जिस तरीके से मिथिलांचल, आप भी साहिबगंज एरिया है तो मिला जुला कर मिथिलांचल और सीमांचल के ही हिस्से में आता है, जो उन्होंने कहा खास करके कोसी के बारे में जो 11,000 करोड़ रुपया दिए गए हैं, उससे कितना फ़ायदा होगा इस क्षेत्र के लोगों को। देखिए, कोसी हमेशा बाढ़ प्रभावित इलाका रहा है। कोसी हमेशा त्रासदी झेलता रहा है बाढ़ का। नेपाल की त्रासदी हमेशा कोसी में आती रही है और कोसी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार भी और नरेंद्र मोदी जी भी। पर्यटन के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। क्या संभावनाएं हैं और किन संभावनाओं की आप तलाश कर रहे हैं? मैं बहुत सारी संभावनाओं को इसमें देख रहा हूँ। समय बहुत कम मिला है, फिर भी पर्यटन के द्वारा बिहार को और विकसित किया जाएगा। भगवान श्री राम के तरह ही यहाँ पे माँ सीता की, माँ जानकी की भूमि जो है उसको डेवलप करना, सेम उसे स्टाइल में डेवलप करने जा रहे हैं। और लोकतंत्र की जननी वैशाली अपने आप में एक बड़ा नाम है। इसको किसी भी की ज़रूरत नहीं है इसको जनाने की, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। उस पर केवल थोड़ी सी धूल जमी हुई थी, उसको हम लोग साफ करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, मैंने उनसे मिला था और पूरा दिल खोल करके उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए जो लोकतंत्र की जननी रही है, जो कुछ भी प्लान लाओगे वहाँ से उसको करेंगे। और मैं 2 प्रोजेक्ट लेकर गया भी था। एक गया का प्रोजेक्ट था 150 करोड़ का, एक प्रोजेक्ट आमी का था छपरा का 13 करोड़ का। दोनों ऑन दी टेबल बैठा कर ऑन स्पॉट उन्होंने सैंक्शन किया। तो ये थे राजू सिंह जी, कैबिनेट मंत्री हैं पर्यटन विभाग के बिहार से, और इनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग के साथ पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में तेजी से काम हो रहा है। कैमरामैन मोंटी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, मधुबनी। और जैसा कि पहलगाम हमले को लेकर वादी कश्मीर समेत पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर है, श्रीनगर के सियाहती मरकज़ डल झील में सयाहों की आमद तकरीबन न होने के बराबर है, जिसकी वजह से शिकारा ऑपरेटर्स, हाउस बोट मालिकान समेत तमाम ताजिर सख्त मायूस हैं। सियाहत की सनत से वाबस्ता हर फर्द ने इस वाक़े की मज़म्मत की है। डल झील के शिकारा ऑपरेटर्स और समाजी तंजीमों का क्या कहना है, ये बात की है डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे अश्वनी मिश्रा ने। विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे हम हैं। नेहरू पार्क स्थित ये शिकारा यूनियन का यहाँ पे दफ्तर है। आमतौर पर सैलानियों से खचाखच ये भरा रहता था पूरा का पूरा क्षेत्र, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण डल में बोटिंग का होता था। आज क्या लोगों के उद्गार हैं। हमारे साथ शिकारा यूनियन से संबंधित, शिकारा समाज से जुड़े हुए लोग हैं। दादा, ये जो पूरा का पूरा अटैक हुआ पहलगाम में, लोग खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि लहूलुहान हुए लोग। ये वही बात है, खून का आंसू रहना ही चाहिए, क्योंकि ये टूरिस्ट लोग घूमने आया था। इसके पास कलाशनकोफ नहीं है, इसके पास बंदूक नहीं है। ये यहाँ पैसा फेंकने के लिए आया, कश्मीर में घूमने आया था। ये किसी ये जान है, ये हमारा टूरिस्ट हमारा बिल्कुल जान है, अपना कलेजा है, इसलिए हमको बहुत दुख है। क्या मनोभाव है और क्या कुछ उन लोगों के लिए आप कहेंगे जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम देके इस वादी कश्मीर को खून से लाल किया है निर्दोष लोगों से? देखिए, जो पहलगाम हमला है, ये लोगों को, जो टूरिस्ट को डिस्करेज करने के लिए, और मैं कहता हूँ कि कश्मीर धरती का स्वर्ग था, स्वर्ग है और स्वर्ग ही रहेगा।
ऐसे आतंकी हमले हम 140 करोड़ भारतीयों को डिस्करेज करने वाले नहीं है। आज आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ के, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट सारे आए हुए हैं चंडीगढ़ से स्पेशल। हम हमले के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और हमने यहाँ पर शिकारा रैली करी है उन डिपार्टेड सोल्स को श्रद्धांजलि देने के लिए। और उन परिवारों के साथ हम अकेला आर्यंस नहीं बल्कि पूरा कश्मीर का एक एक सिटीज़न आज रो रहा है इस हमले पे, क्योंकि टूरिस्ट पे हमला हुआ और इनोसेंट लोगों पे हमला हुआ है। और अकेला कश्मीर नहीं बल्कि पूरा भारत, पूरा विश्व आज उन परिवारों के साथ है। लाल चौक पर बहुत सारे सामाजिक संगठन लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस चीज़ की कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। युवा कितना आक्रोशित है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ताने बाने पर, कश्मीर की रवायत पर, सब पर हमला है। सर देखा जाए तो जिनको भी शहीद किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंसान है जिसने ये किया है, चाहे वो टेररिस्ट है तो वो दरिंदा ही एक जिसने ये किया है। यहाँ के कश्मीर के हर एक गांव से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक सिटी से सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए जैसे जब ये हालात हुए। और हर एक कश्मीर का, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, चाहे बुज़ुर्ग है, चाहे जवान है, वो टूरिस्टों के साथ है और हमेशा उनके साथ रहेंगे। और मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के समूल सफाई के लिए। और जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि देश के विकास की मुख्यधारा में जिस तरीके से 2019 के बाद जम्मू कश्मीर शामिल हुआ है, उसको और गति मिले, जम्मू कश्मीर और प्रगति करे। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, डल लेक, श्रीनगर। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस की सरकारी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए इटली रवाना हो गई हैं। सदर जमहूरिया ये वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका में पोप फ्रांसिस को गुलाहे अक़ीदत नज़र करेंगी। सदर जमहूरिया हुकूमत हिंद और भारतीय अवाम की जानिब से इजहार ताज़ियत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर होंगी। 26 अप्रैल को सदर जमहूरिया वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर पर पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगी, जिसमें दुनिया भर से सरकर्दा शख्सियात शामिल हो रही हैं। और नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। नाज़रीन, जो इनकलाब न्यूज़पेपर ने यानी रोज़नामा इनकलाब ने जो अपनी शह सुर्खी यानी पहली ख़बर बनाया है, जिस खबर को वो ये है कि दहशत गर्दों और उनके आकाओं को नाकाबिले तसव्वुर सज़ा मिलेगी। मधुबनी में मुनक़दा इजलास में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब, अंग्रेज़ी में दुनिया को पैगाम दिया और कहा, दहशत गर्दों की बाकी मानदा ज़मीन को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। मुल्क को 13,480 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे पेश किए। नेपाल की सरहद से मुत्तसिल जयनगर और पटना के दरमियान नमो भारत रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसी अखबार की एक दूसरे सफ़े की सुर्खी है, कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले से पूरा मुल्क सोगवार, चौतरफा मजम्मत। मुल्क के मिली व समाजी और सियासी लोगों ने कहा, ये वाक़या इंतहाई काबिल मजम्मत है। हुकूमत शहदा के लवाहिकीन का ताउन करे और मुजरिमीन को इबरतनाक सज़ा दे। और देखते हैं अगले अखबार को। उसमें राष्ट्रीय सहारा ने जिस खबर को अपनी सुर्खी यानी शह सुर्खी बनाया है, पहली खबर बनाया है, उसमें दिल्ली और कश्मीर में हुई कुल जमाती मीटिंग, सरकार की हर कार्रवाई में अपोजिशन ने साथ देने का किया वादा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, यानी बैनुल-अक़वामी ख़बरों की तरफ रुख करते हैं। तो सऊदी अरब की हुकूमत ने इजाज़तनामे के बग़ैर मक्का मुकर्रमा में दाखिले को ममनू करार दिया। और इसी सफ़े की बैनुल-अक़वामी ख़बरों में एक दूसरी खबर है, कीव पर मिसाइल हमला, 9 हलाक, बच्चों समेत 63 ज़ख्मी। तो ये था आज के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर मुस्बत बातचीत पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका मुआहदे के हवाले से बहुत अच्छा कर रहा है, हम बहुत से फैसले ले सकते हैं जिससे बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर वो नए जौहरी मुआहदे पर रजामंद नहीं हुआ तो उसे बमबारी और इक़्तिसादी दबाव समेत संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और अब पेश है मौसम का हाल।
और नाजरीन, खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मन की बात है